Hello learners, I am Dr. Archana Gupta, Assistant Professor from Department of English of Srimati Benzani Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. In this video, I am going to explain you the story With the Photographer, which is written by Stephen Leacock. This story, With the Photographer by Stephen Leacock, is in the semester 6 of BA course of Rashtra Sant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. This is the first lesson from the Unit 1, that is prose section of the course. Let us know about Stephen Leacock. Stephen Leacock was an internationally popular Canadian humorist, academician, and author of 30 books of light-hearted sketches and essays. He was born in England and was brought up in Canada. He was the English-speaking world's best-known humorist between 1915 and 1925. Some of his notable literary works are Literary Lapses, Nonsense Novels, Sunshine Sketches of a Little Town, Arcadian Adventures with the Idle Rich, My Discovery of England, My Remarkable Uncle and Other Sketches, lastly, The Boy I Left Behind Me. He has received many awards and honors in his life. To mention few are, in 1937, he was awarded the Royal Society of Canada's Lon Hears Medal for his academic work and contribution to the Canadian literature, particularly humor writing. In 1937, again, he won the Governor General's Award for his book My Discovery of the West, a discussion of East and West in Canada, which was based on his experience gathered as a lecturer on his tour to Western Canada. Now coming to the story, With the Photographer. The story has two characters. The first character is I, the narrator of the story, who is Stephen Leacock. And the second character is the photographer. As the title suggests, With the Photographer, आप समझ सकते हैं कि इस कहानी में बताया गया है फोटोग्राफर के साथ का अनुभव। फोटोग्राफर के साथ लीकॉक के अनुभव को बताया गया है। With the Photographer is an amusing account of Leacock's experience with the photographer. One day, Leacock went to a photographer for his photograph to be taken. The photographer was a thin man with dim eyes and was wearing a grey suit. Leacock waited for an hour. Then he was called into the inner room by the photographer for the photograph to be taken. Leacock अपनी फोटो खिंचवाने के उद्देश्य से फोटोग्राफर के पास जाते हैं। फोटोग्राफर एक थिन मैन है, जिसकी डिम आईज है और जिसने ग्रे सूट पहन रखा है। लीकॉक को करीबन आधा घंटा वेट करना पड़ता है। फिर फोटोग्राफर लीकॉक को अंदर के कमरे में बुलाते हैं, जिससे कि लीकॉक की फोटोग्राफ खींची जा सके। Camera is brought in the middle of the room and the photographer crawls into it from behind. फोटोग्राफर कैमरे के अंदर से लीकॉक के फेस को देखते हैं और कहते हैं, He is not satisfied with the face of Leacock
और वो कहते हैं द फेस इज क्वाइट रॉन्ग। तो इस पर लीकॉक कहते हैं आई हैव ऑलवेज नोन, हमेशा से मुझे पता है कि मेरा फेस बहुत गलत है, खूबसूरत नहीं है। Therefore, the photographer proposes Leacock to take photograph of 3/4 full of his face. फोटोग्राफर लीकॉक का चेहरा अपने हाथ में लेते हैं और उसे साइडवेज ट्विस्ट करते हैं, उसका चेहरा एडजस्ट करते हैं जिससे कि लीकॉक का फेस फोटोग्राफ में अच्छा आ सके। लेकिन लीकॉक को गलतफहमी होती है। लीकॉक सोचता है फोटोग्राफर वॉज अबाउट टू किस हिम एंड देयरफॉर ही क्लोज्ड हिज आईज, बट लीकॉक वॉज रॉन्ग। The photographer turned Leacock's face so that it would look good in the photograph that is to be taken. फोटोग्राफर लीकॉक के फेस को जितना हो सके ट्विस्ट करते हैं और फिर खड़े होकर लीकॉक के फेस को देखते हैं और कहते हैं I don't like the head. Then he went back to the machine and took another look of the face of Leacock. फिर उसके बाद वो वापस से मशीन के पीछे जाते हैं और मशीन के अंदर से कैमरे से लीकॉक के फेस को देखते हैं। अब फिर से फोटोग्राफर लीकॉक को कहते हैं ओपन द माउथ अ लिटिल और तुरंत कहते हैं क्लोज इट। देन ही लुक्स अगेन एट द फेस ऑफ लीकॉक थ्रू द कैमरा। ही सेज द ईयर्स आर बैड, ड्रॉप देम अ लिटिल मोर। आंखों के बारे में कहते हैं कि रोल देम अंडर द आईलिड। आप देख सकते हो कि लगातार फोटोग्राफर लीकॉक के फेस के ऊपर कुछ न कुछ कमेंट कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, माउथ इज रॉन्ग, ईयर्स आर रॉन्ग, आईज आर रॉन्ग। ही इज कंटिन्यूअसली अटैकिंग लीकॉक एंड हिज फेस, ऑन हिज फेस। The photographer goes on to give a series of instructions to Leacock, like to put the hands on the knees, to turn the face just a little upward, to expand the lungs, bend the neck, contract the face as it was a little too full. पहले फोटोग्राफर ने लीकॉक को उनके फेस के रॉन्ग होने पर कहा और अब वो लीकॉक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कैसे बैठना है, कैसे फेस को एडजस्ट करना है, लंग्स को एक्सपांड करना है, नेक को बेंड करना है, फेस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। Too many instructions photographer gives to Leacock. Leacock gets impatient with all these instructions. बहुत impatient हो जाते हैं लीकॉक इतने सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ और वो फोटोग्राफर से कहते हैं दिस फेस इज माई फेस, इट इज नॉट योर, इट इज माइन। आई हैव लिव्ड विथ इट फॉर 40 years and I know its faults. I know it is not beautiful. I know it wasn't made for me, but it is my face, the only one I have. लीकॉक फोटोग्राफर को गुस्सा दिखाते हैं, कहते हैं ये फेस उनका फेस है और इस चेहरे के साथ वो पिछले 40 साल से लगातार जीते आ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके चेहरे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, वो ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी है, जैसा भी है,
ये मेरा फेस है, and this is the only one I have, and I do not have any other option but to live with this face only. He also adds, I have learned to love it, and this is my mouth, not yours. These ears are mine, and if your machine is too narrow. आगे लीकॉक कहते हैं, इस चेहरे से मुझे प्यार है क्योंकि ये मेरा अपना है, ये मेरा मुंह है, तुम्हारा नहीं, ये मेरी ईयर्स हैं, तुम्हारे नहीं, और अगर तुम्हारे मशीन में मेरा चेहरा प्रॉपर नहीं आ रहा तो बस इतना कहकर लीकॉक फोटोग्राफर के पास से उठकर जाने को होते हैं, और तभी फ्लिक, द फोटोग्राफर had pulled the string and the photograph was taken. Leacock wanted to see his photograph, but the photographer told him to come back on Saturday to see the proof of his photograph. Saturday, Leacock goes to the photographer to see the proof of his photograph. Leacock is shocked to see the proof, क्योंकि वो फोटोग्राफ जो था, वो फोटोग्राफ देखकर लीकॉक को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये फोटोग्राफ उनकी फोटोग्राफ है। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफर ने एडिट कर दिया था फोटोग्राफ में लीकॉक की आईज को, आईब्रोज को और भी फीचर्स को इतना एडिट कर दिया था कि जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ लीकॉक के फेस से रिजेंबल ही नहीं कर रही थी। ये सब देखकर लीकॉक फोटोग्राफर से पूछते हैं ये सारे चेंजेस के बारे में। तो फोटोग्राफर जवाब देता है, ये सारे चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि मुझे तुम्हारा फेस पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हारे आईज को एडिट कर दिया, तुम्हारे हेयर्स को बदल दिया, तुम्हारे आईब्रोज को बदल दिया, तुम्हारे मुंह को बदल दिया। ये सारी चीजें लीकॉक के फेस की, आईज, हेयर्स, आईब्रोज, लीकॉक के माउथ, फेस का माउथ फोटोग्राफर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही गलत लगा, इसलिए फोटोग्राफर ने सारा कुछ बदल दिया। The eyes were retouched, आंखों की रीटचिंग हो गई थी। The hairs on the eyebrows of Leacock were too low and were on the skull. Therefore, the photographer had removed them with an intention to set new eyebrows in the photograph, and the mouth was also adjusted. देखिए, फोटोग्राफर ने फोटोग्राफर की आईज को रीटच किया, आईब्रोज के हेयर्स को पूरा रिमूव कर दिया इस इंटेंशन के साथ कि उन आईब्रोज की जगह वो दूसरी आईब्रोज लगा देगा। उसके पास ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से वो नई आईब्रोज जो अच्छी होंगी, जो खूबसूरत होंगी, उसको फोटोग्राफ में लगा देगा। और माउथ को भी एडजस्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो था, इसीलिए माउथ को भी एडजस्ट किया। सिर्फ प्रूफ में ईयर्स जो थे वो ईयर्स लीकॉक के ईयर्स से मैच कर रहे थे। और जब लीकॉक ने फोटोग्राफर से पूछा तो उसे जवाब मिलता है, हाँ, ईयर्स भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं, रॉन्ग हैं, and he was all prepared to edit the ears as well in the final print of the photograph. Looking at all this, these changes in the photograph, Leacock is filled with bitterness. बहुत कड़वाहट लीकॉक के मन में आ जाती है और गुस्सा भी आता है, और अपने गुस्से को वो इस प्रकार से जाहिर करते हैं। I came here for a photograph, a picture, something which, bad though it seems, would have looked like me. मैं तुम्हारे पास फोटोग्राफ लेने आया था, एक ऐसी फोटोग्राफ
जो जिसमें मैं दिखूं, जो मेरे समान हो, भले ही वो बुरी हो, वो फोटोग्राफ अच्छी नहीं हो, बुरी हो, लेकिन कम से कम वो फोटोग्राफ मेरे फेस के जैसी हो, मेरी हो वो फोटोग्राफ। I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me, humble though the gift may have been. I wanted something that my friends might keep after my death to reconcile them to my loss. It seems that I was mistaken. लीकॉक कहते हैं कि वो फोटोग्राफ 2 रीजन से चाहते थे। पहला रीजन कि उस फोटोग्राफ में वो दिखें, ना कि कोई और, उनकी फोटोग्राफ हो। और दूसरा रीजन, वो फोटोग्राफ इसलिए भी चाहते थे कि उनके फ्रेंड्स उस फोटोग्राफ को उनकी डेथ के बाद देखकर याद करें। लेकिन लीकॉक को लगता है कि ये उनकी गलती थी, फोटोग्राफ लेना उनकी गलती थी। He considered the work of the photographer to be brutal work and told the photographer to keep his photograph with himself, to show it to his friends and also describe them the advanced technology that he can use to edit anyone's face to look beautiful in the photograph. Leacock then burst into tears and left the photographer. फोटोग्राफर के पास आने के समय में लीकॉक ने सोचा था कि उसको उसकी फोटोग्राफ मिलेगी, एक ऐसी फोटोग्राफ जो उसके जैसी होगी, जिसमें उसकी फोटो होगी, जैसा वो है वैसी फोटो होगी। लेकिन फोटोग्राफर ने तो फोटोग्राफ में लीकॉक के चेहरे को बिल्कुल ही बदल दिया था और इस बदले हुए वर्क को लीकॉक ब्रूटल वर्क कहलाता है। बहुत ही अमानवीय वर्क, दर्दनाक किस्सा कहलाता है और कहता है कि इस फोटोग्राफ को फोटोग्राफर खुद ही रख ले और अपने फ्रेंड्स को वो फोटोग्राफ दिखाए और दिखाते वक्त डिस्क्राइब करे कि कैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की सहायता से किसी के फेस को एडिट किया जा सकता है, उसे सुंदर बनाया जा सकता है। और इतना कहते हुए लीकॉक burst into tears and left the photographer. तो इस प्रकार से ये जो कहानी है विद द फोटोग्राफर, इस कहानी में लीकॉक के इमोशनल रिएक्शन को रिकॉर्ड किया गया है। इमोशनल रिएक्शन जो कि उनके फेस को रीशेप और रीकंटूर किए जाने पर हुए हैं। और ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत फनी भी है और एट द सेम टाइम इसमें हमें हिंट मिलती है ह्यूमन इडियोसिंक्रेसीज और वल्नरेबिलिटीज की, मतलब कि किस प्रकार से व्यक्ति की सोच होती है, व्यवहार होता है और उसकी कमजोरियां होती हैं। इसका भी हमें लेखा जोखा इस कहानी के माध्यम से मिलता है। और when the narrator walks out in tears because the photo did not resemble him and perhaps cast doubt on his sense of self-esteem, the essay acquires a satirical dimension. So this is the humor and irony in the story with the photographer. Thank you for learning with me. Thank you.